Hello everyone, this is a video for the CF Final Financial Reporting old course students, and I'm so very glad to make this particular video because the old course ke liye there was a even more important in this attempt to have a strategy based working being their last attempt. And what I've done is मैंने पिछले 4 एग्जाम्स की सारी RTP, MTP और पास्ट एग्जाम के एक क्वेश्चन को रिव्यू करके एनालाइज करके उसे एक एक्सेल में प्लॉट करके आप लोगों के लिए यहाँ पे एक एबीसी एनालिसिस बनाया है. In this ABC analysis, I have essentially identified what has happened in the last 4 exams in RTP, MTP and the past exam questions, and based on that कौन से पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जो रिपीटेटिवली पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक्स हैं जो एक्सपेक्टेड हैं और कैसे आप अपनी स्ट्रैटेजीज को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं. So let's first get with the ABC analysis, and I would then show you how I have kind of done this categorization in one page of the past 4 exams of the MTP RTPs. And I have also done one thing for you is कि सारे accounting standards के बेस जितने भी questions पिछली एग्जाम्स में पूछे गए थे उन सब का आइडेंटिफिकेशन की कौन से पेपर में कौन से नंबर का क्वेश्चन किस पर्टिकुलर एएस के किस पर्टिकुलर टॉपिक से था, सो दैट इफ यू वांट टू prioritize your studies between accounting standard, that will also something which is going to help you. Apart from that, this is similarly we have a one pager for MTP and then for your RTP. इसके basis पे मैंने ABC बनाया. I think this one pager could be very handy with you. Strongly suggest एक print out निकाल के आप इसका रख लीजिए और accordingly last week में आप अपनी studies इसके basis पे fine tune करना चाहें तो कर सकते हैं. This is just an ABC analysis based on the past pattern. I thought कि past exam old course wale students as such are well versed with the exam pattern, and hence they may not really need too much of input in terms of what possibly can come in the exam. Rather they will need something more scientific which will give them a good flavor of what has already been asked where, and if they want to review any of these particular material they have one proper index available for it. सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करें तो एग्जाम में इसका वेटेज ऑन एन एवरेज 24 to 30 मार्क्स का आता है. दिस इज एक्सक्लूडिंग योर गाइडेंस नोट्स लाइक ESOP and IND AS. When I say 24 to 30 mark, more importantly, the first question, the 4 parts, all of them usually are from accounting standard. One of them could be relating to schedule 3 sometimes, not very often. That is why ये कंपल्सरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है. कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर क्वेश्चंस रेगुलरली पूछे गए हैं, जो बेस वाले स्टैंडर्ड होते हैं नॉर्मली उसके ऊपर 2 स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आते ही आते हैं, जैसे कि इन्वेंट्री AS2 हो गया, 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, PPE आपका AS10 हो गया, इवन AS29, इवन AS4. ये बेसिक नेचर के स्टैंडर्ड है जो बेसिक एसेट लायबिलिटी की डेफिनेशन के ऊपर बेस्ड होते हैं. तो नॉर्मली आप देखेंगे कि आउट ऑफ द 5 to 6 क्वेश्चंस व्हिच यू आर गेटिंग एट लीस्ट इन योर एग्जाम, यू विल फाइंड एट लीस्ट 2 to 3 क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम दीस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड, एंड द रिमेनिंग वंस may come from the other standard like standards, for example AS15 employee benefits, very well expected this time. 16 borrowing cost also very well expected. 19 का हालांकि पिछली बार क्वेश्चन आया था, 22 अटेम्प्ट से पूछा जा चुका है. That is why I've kind of not included it here just because it has been asked so many times. Impairment is something which is pending for some time, so I expect that could also be covered, and some of these standards which are put up here like 10 is also something which have been asked in the past but have been repetitively asked, तो हो सकता है वापस आ जाए. इनकम टैक्सेस बहुत समय से देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए उसको भी मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट में डाला है. देन शेड्यूल 3 डिवीजन 1 पिछले 4 एग्जाम में सिर्फ एक बार क्वेश्चन आया है, तो उसका रेलेवेंस आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो कि नॉट पॉसिबली वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. आपको मालूम है दोस्तों सीए फाइनल में सारे ज्योतिष फेल हो जाते हैं, तो कितनी भी हम प्लानिंग करें हो सकता है कि पेपर एकदम ऑफ बीट आ जाए. लास्ट एग्जाम है तो उम्मीद करते हैं कि इंस्टीट्यूट ऐसी कोई हरकत ना करे, बट देन द मेथड ऑफ फॉर्मिंग द पेपर वेयर मल्टीपल पीपल मेक द पेपर एंड देन अ कंबाइंड पेपर इज डिराइव्ड आउट ऑफ दोज मल्टीपल पेपर्स, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट बिकॉज इट इज नॉट मेड बाय वन पर्सन, and that is why you should always be prepared for any kind of contingencies, surprises or a different pattern. Hence prepare for the worst and then hope for the best for your exams. Then coming on to IND-AS, IND-AS के ऊपर डेफिनेटली अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो आपका IND-AS 32109107 पर बेस्ड है, उसके अलावा अब आप देखेंगे तो आजकल 2 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज IND-AS पे आने लग गए. इनफैक्ट देखा गया है कि 4th क्वेश्चन नॉर्मली IND-AS के ऊपर होता है. द पैटर्न लाइक फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आपके 16 मार्क के क्वेश्चन कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कंसोलिडेशन रिलेटेड यूजुअली. 4th क्वेश्चन आपका पूरा IND-AS बेस्ड होगा जिसमें एक आध क्वेश्चन
या 2 क्वेश्चन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के चैप्टर के ऊपर बेस्ड होंगे एंड देयर विल बी अनदर क्वेश्चन व्हिच विल ईदर बी ए ऑन कंपैरिजन ऑफ वन ऑफ द बेसिक इंडेक्स जिसके कंपैरेटिव एएस के साथ आसानी से किए जा सकते हैं, जैसे कि जो क्वेश्चंस पिछली कुछ एग्जाम में पूछे गए कंपैरिजन रिलेटेड हैव बीन ऑन इन्वेंटरीज, इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, पीपी, इवन इंटेंजिबल एसेट्स, द बेसिक एसेट लायबिलिटी, बेसिक डेफिनेशन, इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, बेसिक स्टैंडर्ड पे जो डिफरेंसेस है वो, प्लस जहां अमेंडमेंट आते हैं उससे रिलेटेड चीजें भी इंस्टीट्यूट कभी पूछ लेता है, जैसे कि 116 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। सो इन दैट सेंस क्योंकि बिजनेस कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन में एक हल्का सा अमेंडमेंट आया था, स्ट्रांगली सजेस्ट कि अब वो वाला अमेंडमेंट अगर देखा हुआ है तो एक बार उसको रिव्यू अच्छे से कर सकते हैं, बिकॉज अमेंडमेंट्स हैव बीन आस्क्ड। अपार्ट फ्रॉम दिस इंडेक्स की हम तैयारी कैसे करें, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन इंस्टीट्यूट के मटेरियल में जो हर एएस इंडेक्स के साथ में कंपैरिजन दिए गए अंत में, वो कंपैरिजन अगर आपने रेफर किए हैं तो आई थिंक दैट इज द बेस्ट रिसोर्स व्हिच यू कैन फॉलो। हमने उन सारे कंपैरिजंस की एक अलग पीडीएफ बनाई थी व्हिच इज समथिंग व्हिच आई वुड शेयर ऑन द टेलीग्राम चैनल, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें सिर्फ एएस इंडेक्स के सारे कंपैरिजन है। उसे पढ़ के आप 2 तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। नंबर 1 जो एएस इंडेक्स के कंपैरिजन के ऊपर बेस्ड है, नंबर 2 ऐसे सवाल जो बोलते हैं कि आप एज पर इंडेक्स इसे सॉल्व करो। क्या ऐसे भी सवाल आते हैं सर? इंडेक्स 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि देयर इज नॉट अ करस्पॉन्डिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया फॉर दैट, बिकॉज हम उसे इन्वेस्टमेंट्स के अंतर्गत डील करते हैं, लेकिन इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को पीपी के जैसा क्लासिफाई करके ट्रीट किया जाता है। एवरीथिंग इज लाइक पीपी एक्सेप्ट उसका नॉमेनक्लेचर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और रिवैल्यूएशन मॉडल अलाउड नहीं होता है। उसके ऊपर एक सवाल ओल्ड कोर्स में पिछले 4 एग्जाम्स में ही इनफैक्ट पूछा जा चुका है। तो वो कंपैरेटिव अगर आप इंडेक्स प्लान करना चाह रहे हो तो आई थिंक वो प्लस जो अमेंडमेंट हुए हैं जो आरटीपी में आपको दिखेंगे, नॉट ऑल दी अमेंडमेंट, क्योंकि आरटीपी में 2017 से लेके अभी तक जितने इंडेक्स के अमेंडमेंट्स आए सारे कैरी हो रहे हैं। आई वुड से जस्ट 116 का एक कोविड रिलेटेड और बिजनेस कॉम्बिनेशन, ये 2 इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है जिसको आप देख सकते हैं। इससे आप इंडेक्स के 2 से 3 क्वेश्चन अदर देन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाले जो भी एग्जाम में आ सकते हैं उसको पॉसिबली आप अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। देन कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक ऐसा चैप्टर है जो थ्योरी बेस्ड चैप्टर है, यूजुअली आप समझ लो 10 अटेम्प्ट में एक आध बार आने वाला सवाल है इसका। इसके ऊपर एक सवाल ऑलरेडी पिछली एग्जाम में पूछ चुके हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट का क्या रिलेवेंस है, दैट इज आई डोंट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम दिस चैप्टर। Accounting for corporate restructuring, when I saw the patterns in the last 4 papers plus the RTP MTP, मुझे लगा कि mostly जो इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछे हैं they are I mean more of those particular questions where there have been once there was an internal restructuring question asked in the exam, एक बार there was a question of acquiring the remaining stake from the foreign investment party and then amalgamating, in fact absorbing with that particular company। यानी कि जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो प्योर बेसिक अमलगमेशन या अब्जॉर्प्शन का क्वेश्चन नहीं है, विद सम एडजस्टमेंट है। आई स्ट्रांगली फील कि कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग साइड वाले क्वेश्चंस पॉसिबली आपसे पूछे जा सकते हैं। हालांकि एक क्वेश्चन पिछली 4 एग्जाम में नेचर ऑफ परचेज का सिंपल प्लेन वेनिला क्वेश्चन भी पूछा गया है, इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग का भी प्लेन वेनिला क्वेश्चन था, तो बहुत डिफिकल्ट है प्रिडिक्ट करना कि क्या पूछा जा सकता है। बट माय इंक्लिनेशन इज कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के जो आपके इंटर बेस्ड नहीं होते हैं टॉपिक्स, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पॉसिबली पूछे जा सकते हैं। इसमें आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप इस चैप्टर को तो शुरू से आखिरी तक A to Z पूरा अच्छे से इसको कवर करें, बिकॉज दिस इज समथिंग व्हिच इज डेफिनेटली नॉट यू आर गोइंग टू मिस, इनफैक्ट आप ऑप्शन में इसे नहीं छोड़ना चाहेंगे। नाउ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स है इसकी सर ये तो बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको कैसे कवर करेंगे, तो इसको ऑप्शन में छोड़ देते हैं। अब जिन्होंने ये स्ट्रैटेजी आपको दी या आपने फॉलो करी उन लोगों के साथ फिर प्रॉब्लम आती है कि इंडेक्स भी अब वो सारे कवर नहीं कर पाते हैं, तो फिर 4th क्वेश्चन भी आपको कहीं ना कहीं दिखती है। प्लस अगर कभी थोड़ा पेपर का पैटर्न हिल गया तो फिर आपके लिए हो सकता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन बीच में आ जाए जिसके कारण आपको उसे ऑप्शन में छोड़ने की इच्छा हो। तो एक बेसिक स्ट्रैटेजी ध्यान रखिए, ऑप्शन में एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ने की इंस्टीट्यूट ने क्यों आपको ऑप्शन परमिशन दे रखी है, प्योरली कि इनकेस पेपर पैटर्न अगर कुछ नया आ जाता है या कोई क्वेश्चन आपने किया है या बट यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल ड्यूरिंग दैट एग्जाम टाइम फॉर दैट क्वेश्चन, देन यू कैन स्किप इट, रादर देन पहले से प्लान करके वहां एग्जाम हॉल में जाना कि भैया ये तो मुझे करना ही नहीं है। ये सिर्फ बताने की, दिल को आपको तसल्ली देने की बातें हैं। बट सर अब हमने वो स्ट्रैटेजी फॉलो करी, वी जस्ट हैव ऑलमोस्ट लाइक 5-7 days left for the exam. How would now in this particular scenario will we deal with consolidation as a chapter? That's a very in fact pertinent question.
नाउ व्हाट आई कैन से इज कि नॉर्मली इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्योंकि क्वेश्चन जो आते हैं वो 16 मार्क के आए हुए हैं और लेंथी क्वेश्चंस आए हुए हैं, अगर अपन पिछले क्वेश्चंस देखें तो अच्छी बात ये रही है देखने को कि पिछली 4 एग्जाम में हर बार जो क्वेश्चन आया है वो सिंगल सब्सिडरी से रिलेटेड है और इन क्वेश्चंस में कोई ऐसा क्रॉस होल्डिंग चेन होल्डिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स नहीं है and most of these questions have just had those adjustments which are given in the notes like dividend का adjustment, step acquisition के adjustment या intercompany transfer, intercompany debt के इस टाइप के या mid of the year acquisition हुआ इस तरह के adjustments हैं. I would strongly suggest कि आप उस तरह के questions जो पूछे जा रहे हैं अगर आपने पूरा consolidation properly तैयार नहीं किया है तो वो सारे questions associate प्लस अगर मल्टीपल सब्सिडरी का क्वेश्चन आ जाता है तो उसको आप थोड़ा सा हैंडल कर लीजिए. एटलीस्ट बेयर मिनिमम अगर आप इतना कर पाएंगे और अगर आपने क्लासेस हमसे लिए तो हम केस बेस पढ़ते हैं कंसोलिडेशन में सारे पॉसिबल एडजस्टमेंट के केसेस कर लेते हैं. आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप उसको देख लो. देन कमिंग ऑन टू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, दिस इज वन चैप्टर व्हिच you have a very good revision video available which we made for the new course but it is applicable for the old course. आप अगर उसको देखना चाहें तो आप उसको एक काम करिएगा, फाइनेंशियल लाइबिलिटी के टॉपिक से पहले तक का वो वीडियो आप देख लीजिएगा. That particular video available on YouTube, आप सर्च करिएगा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम से. It was recorded almost like 6-8 months ago. In that particular video you will find that whole of financial instrument chapter is very well covered. You should be in the position to kind of get a good grip over it even if you are kind of lagging somewhere or the other for it. उसमें हालांकि न्यू कोर्स में और ओल्ड कोर्स में कंपेयर अगर मैं करूं तो क्या डिफरेंस है. ओल्ड कोर्स में आपको प्राइमरली इंड एस 32 क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स लायबिलिटी, देन उसके बाद में अकाउंटिंग में आपके लिए मोस्टली फाइनेंशियल एसेट और लायबिलिटी में अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड और एक कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, एट बेस्ट डेरिवेटिव्स की अकाउंटिंग. बस इतना इंपॉर्टेंट होता है, इतने के ऊपर ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सबसे ज्यादा सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. इनिशियल रिकॉग्निशन भी क्या होगा, अर्ली रिडम्पशन का भी कर दिया तो क्या होगा, इस तरह की अकाउंटिंग. देन सेकंड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इज एसीएम मेथड जिसमें इन्वॉल्व होते हैं. एक पार्शियल डी रिकॉग्निशन सी लिमिटेड का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पहले पूछा जाता था, पिछले 4 अटेम्प्ट से नहीं आया है, वो आप देख सकते हैं. अदरवाइज जो मैंने टॉपिक्स यहाँ एबीसीएम में लिखे हैं आपको, आप प्राइमरली बस उतना कर लीजिए उस रिवीजन को देख के. अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो फिर आप जो भी रिवीजन या बुक्स रेफर करते हैं उसे देख के, आई थिंक इतने से हमारा काम इस पर्टिकुलर चैप्टर का अच्छे से हो सकता है. ये पर्टिकुलर चैप्टर भी आपको डेफिनेटली करना ही करना होगा. ये हो सकता है कि इंडेस के क्वेश्चन के साथ आपको इसका क्वेश्चन देखने को मिल जाए. तो इन दैट पर्टिकुलर केस इफ यू आर प्रिपेयरिंग in detail for this, then also do refer those differences between AS and IND-AS. Share based payment normally एक क्वेश्चन इसका आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, which would be either of 4 mark 8 mark. एक बार एक क्वेश्चन 8 मार्क और एक क्वेश्चन 4 मार्क का भी आया, इसलिए अपर रेंज मैंने 12 मार्क्स रखी है. यूजुअली एवरेज 8 मार्क का क्वेश्चन इस पे आएगा. अगर आप देखेंगे शेयर बेस्ड पेमेंट में तो इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, नॉर्मली जो भी क्वेश्चन पूछे हैं वो सारे क्वेश्चंस में या तो वो जर्नल एंट्रीज पूछते हैं या अमाउंट, यानी जर्नल एंट्रीज भी आप एक बार देख लीजिएगा. क्वेश्चन या तो 2 से 3 सालों के डेटा को देता है और उस 3 साल के पीरियड में बताता है कि वेस्टिंग कंडीशन है, एम्प्लॉय को रुकना पड़ेगा और इस दौरान इतने इतने एम्प्लॉय छोड़ के चले गए, तो बताइए क्या एंट्रीज होगी. या रिप्राइसिंग का क्वेश्चन है कि सेकेंड ईयर में शेयर की वैल्यू गिर गई तो रिप्राइस कर दिया. एक बार ग्रेडेड वेस्टिंग भी पूछा गया पिछले 4 अटेम्प्ट्स में. इन दैट सेंस क्या नहीं पूछा गया है, इक्विटी और कैश सेटल्ड स्टॉक अप्रिसिएशन राइट्स वाले क्वेश्चन नहीं पूछे हैं. ज्यादा सारे आपके जो क्वेश्चंस है वो सब इक्विटी सेटल्ड प्लान के पूछे. उस लॉजिक से आप क्या कर सकते हैं, तो आई थिंक पिछले क्वेश्चंस ही अगर आप अच्छे से रिव्यू कर लोगे प्लस एक एसएआर अलग से कवर कर लोगे तो यू विल बी डन विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर. इन टर्म्स ऑफ आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस इज काइंड ऑफ यू नो बेयर ए कैटेगरी थिंग जिसको आप करके आप क्विकली क्या कर सकते हो, कैन काइंड ऑफ कवर द होल थिंग. मैंने साफ साफ डिस्क्लेमर दिया, अगर आप देखेंगे ये प्योर ओपिनियन पास्ट एग्जाम पैटर्न के ऊपर बेस्ड है. सारे ज्योतिषी फेल हो गए दोस्तों जब कोविड आया, और जितनी भविष्यवाणी की थी कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाया. तो एक बात समझ लीजिए, nobody knows what is going to happen in future. If I was knowing what is going to happen in future, I would not have been here. I would be trading in stock markets and bitcoins, right? So please understand, this is all based on past experiences. It is, you can say, at best a research based backed with some fundamental research analysis. It may go wrong, it may go right, just that the probabilities of working through these logics would help us to maybe possibly get more out of less time involved. But there is no substitute for comprehensive study, good study.
conceptual study and hard study, but nevertheless you can still kind of improvise with this analysis. So based on this, I've given in terms of what could be important. Then financial instruments, you have primarily two chapters, NBFCs and म्यूचुअल फंड. एनबीएफसी में अगेन मोस्टली क्वेश्चंस या तो पूछे गए प्रोविजन बेस्ड, कभी उसमें हायर परचेज वाले ले असेट्स दे देते हैं, कभी स्टैंडर्ड असेट्स यानी लोन असेट्स दे देते हैं, और कभी उसमें क्वेश्चन नेट ओन फंड्स के कैलकुलेशन का भी पूछा गया है. तो आई वुड रादर सजेस्ट कि मोर और लेस सारी कवरेज क्वेश्चंस की पिछले 4 एग्जाम्स आरटीपीज एमटीपीज में हो गई, आप उतना एट बेस्ट कवर कर लोगे, दैट शुड बी गुड एनफ. म्यूचुअल फंड का एक आध क्वेश्चन आ जाता है 4 मार्क का, यूजुअली उसमें या तो वो एनएवी कैलकुलेट करने की बात करते हैं, नेट एसेट वैल्यू, और दे वुड आस्क यू टू कैलकुलेट सम काइंड ऑफ एन यील्ड. यानी मैं ये सजेस्ट करूंगा कि पिछले 4 अटेम्प्ट या पिछले 3 एग्जाम्स जिसमें आपको एज सच टोटल 4 आरटीपीज 3 आरटीपीज 4 एमटीपीज, और अगर पिछले 3 अटेम्प्ट देखोगे तो 4 एग्जाम्स आपको मिलेंगे नवंबर 20 एंड जैन 21 मिला के. इतने इन टोटल अगर आप पेपर और इसके आरटीपी एमटीपी के सारे क्वेश्चंस कर लेते हो, तो उसके अलावा आई थिंक एनबीएफसी में एंड म्यूचुअल फंड्स में आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं बचती है. मोर और लेस एवरीथिंग पॉसिबली काइंड ऑफ गेट्स कवर्ड देयर, एक्सेप्ट एक वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन यहाँ पे देखने को नहीं मिला है, तो उसको आप एडिशनली कवर कर लीजिए. वैल्यूएशन में 16 मार्क का क्वेश्चन बैक टू बैक इंस्टीट्यूट पूछ रहा है. नॉर्मली क्वेश्चन में गुडविल का वैल्यूएशन इन्वॉल्व होता ही होता है. बिजनेस वैल्यूएशन प्योर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पिछले 3 अटेम्प्ट में नहीं आया, तो उस सेंस में आप गुडविल अच्छे से देख लीजिए. शेयर बेस्ड वैल्यूएशन वुड बी जस्ट टॉप ऑफ इट, एंड बिजनेस वैल्यूएशन में सिर्फ डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक के बेस्ड जो ईयर 0 के कैश फ्लो ऐड करके वैल्यूएशन ऑफ शेयर में डिस्काउंटेड कैश फ्लो ऐड करके निकालते हैं, बहुत ही सिंपल है. वो वाला एक क्वेश्चन आप जो किडीज लिमिटेड टाइप का है उसको देख लीजिएगा. Developments in financial reporting, now this is something which definitely is human resource accounting, value added statement, economic value added, very doable chapters, very simple, sure short 8 मार्क आपको लाके देंगे. इसको डेफिनेटली देख लीजिएगा. ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के चैप्टर में एज सच आप देखोगे तो नॉर्मली वो प्रिडिक्टिव वैल्यू इन ब्लैक एम्प्लॉय को मैक्सिमम कितना पे कर सकते हैं, या इस रिक्रूट कर रहे हैं कोई नए एग्जीक्यूटिव को कितना पैसा देना चाहिए, या फिर इस तरह के क्वेश्चंस एज सच पूछे गए हैं पिछली एग्जाम्स में. वैल्यू एडेड स्टेटमेंट में इकोनॉमिक वैल्यू एडेड के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, और वैल्यू एडेड स्टेटमेंट में भी एज एन बोनस कितना देना है उस तरह के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए. तो यू कैन काइंड ऑफ गो थ्रू दीज क्वेश्चंस. फ्रेमवर्क प्राइमरली ऊपर के हमारे डिस्कशन में कवर हो जाते हैं. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और गाइडेंस नोट, ईसॉप है ये, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वी हैव डिस्कस. फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे नॉर्मली क्वेश्चन आता नहीं है, थ्योरी टाइप है जो फाउंडेशन सीपीटी में फर्स्ट चैप्टर आप पढ़ते थे. मोटिलिटी के ऊपर एक क्वेश्चन हालांकि इसके ऊपर आया था, व्हाट इज हाउ डू यू डिफाइन मोटिलिटी, जिसमें आंसर आपको दिखेगा फ्रेमवर्क में, बट आप AS1 के बेसिस पे भी दे सकते थे. तो यू डोंट रियली हैव टू काइंड ऑफ मोस्टली डू दिस पर्टिकुलर चैप्टर. दिस इज योर ABC एनालिसिस फॉर December 2021 अटेम्प्ट फॉर द CA फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ओल्ड कोर्स स्टूडेंट्स. इसके साथ में दोस्तों आप fast.edu.in की वेबसाइट पर जाकर ये डाउनलोड कर सकते हैं. इसमें आपको जो मैंने आपको शुरू में बताया था, you'll get everything, past exam questions, and you can very well see in this you have July 21, Jan 21, November 20, November 90 exams questions plotted with a small description. एज के ऊपर बेस्ड जितने भी पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस आए थे वो सब यहाँ पर हैं. इसमें ध्यान रखिएगा ईसॉप बेस्ड क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे शामिल नहीं किए हैं. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर बेस्ड और इंडेस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे शामिल किए हैं. क्वेश्चन इसमें इंडेस फाइनेंशियल ईसॉप प्लस AS20 के ऊपर बेस्ड था, वो इसमें शामिल नहीं किया. देन एमटीपी पिछले 2 एग्जाम्स की 4 एमटीपी हमारे पास हैं, which is for December 21 and May 21. I've just included those MTPs, तो ये 4 MTPs के एनालिसिस है. एंड देन RTP हमारे पास पिछले 3 RTPs मैंने कंसिडर करी है. December 21, which is November 21 written here, May 21 and November 20. And this also gives you in terms of what kind of questions have asked. अगर आप इसमें देखोगे तो you'll find AS1 के ऊपर जैसे बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिसके ऊपर पास्ट एग्जाम में कभी क्वेश्चन नहीं आते. तो मेरा ऐसा मानना है दोस्तों, strongly suggest and recommend. I should have told this at the beginning of this particular video, but I strongly suggest and recommend कि अगर आप ये जितने क्वेश्चन यहाँ RTP MTP में दिए गए हैं, प्लस जो मैंने एडिशनल क्वेश्चन कुछ चैप्टर्स में बताए हैं,
इतना अगर आप bare minimum कर लेते हैं तो if the question paper is not out of the box, I think more or less we should be good enough to sail through with the question paper. All the very best for your exams. I really wish you do very, very well. And next time when we meet here on YouTube, you look at not a video of financial reporting or audit from me, but maybe a video which helps you to prepare for your campus interviews and assist you in job placement. See you in Fast Careers very soon after your exams and results, where we'll help you to get placed in one of the best corporates to get you your dream job. Wish you all the very best, दोस्तों. आखिरी मौका है, चौके छक्के जो लगाना है लगाओ. It's a game. Do not get worried about the last attempt. Do not let it mount a lot of pressure on your head कि भैया आखिरी attempt है, इसमें नहीं हुआ तो क्या होगा. Do not take it like that. In fact, you should just take it the other way around, which essentially is principally that, okay, whatever is gone is past. अब जो मेरे पास समय बचा है उसमें भी मैं अगर स्ट्रैटेजी लगाकर कुछ कुछ ऐसी चीज कर लूं कि पेपर से आने के बाद इंस्टेड ऑफ सेइंग काश इस एग्जाम में थोड़ी पढ़ाई गल्ली होती तो निकाल देता, कि जगह आपका एटीट्यूड हो जाए बढ़िया यार, आखिरी के कुछ दिनों में जो जो मैंने स्ट्रैटेजाइज करके कवर किया उसमें से कितना कुछ आ गया एग्जाम में. So very happy that I could strategize and plan things in a better fashion at the last moment, because of which I am able to secure additional 4, 5, 10 marks in all my papers. I think that is done. Your job is kind of done. With that very particular thing, wish you all the very best for your exam. Paper 1 में ध्यान रखना, speed का ख्याल रखना. आप लोग दे चुके हैं पहले exams, so I don't have to tell you too much about it in terms of what sequence should you follow and all that stuff. So I'm not giving you tips and tricks and strategy when a new course के video में दी थी. If you have that kind of inclination, you can look at those strategies which I've shared in between at the end. How to prepare for your last 5 to 7 days for your exam, which applies to new course, old course and all papers. As in all first paper in every particular exam. Apart from that, exam hall में कैसे अपने को strategize करना है उसके कुछ tips मैंने वहाँ पे share किए. Thank you very much.